Shall we? Good evening, Namaskar everyone. Welcome to my channel, The Health Talk Show. Thank you viewers for watching our last live video which was on pediatric orthopedics by Dr. Gaurav Jain. We tried to bring in the absolute required content and the demand of the public which was mentioned in the various communications. Today is 25th September 2021 and we are in Indore right now, Madhya Pradesh, which is in India. This 25th September 2021 is also known as the World Pharmacy Day. We all know how tough times we have been facing in the last 2 years. Thanks to our frontline workers, also the pharmacists in particular, they have played a very crucial role in serving the nation and people worldwide for their healthcare needs. So my sincere regards to the pharmacists, my sincere gratitude to all the pharmacists who are watching this show, who are not watching this show. You guys have done a great job and served this nation. Round of applause for you people. As you know, my intention is to bring in the various clinical topics and subjects which can help you in your day-to-day life and your career. Today with me on my show is Dr. Manish Kundwani. Hello, sir. Welcome to my show, Dr. Manish. By profession, Dr. Manish is an physiotherapist. Yes. He is practicing in Indore, Madhya Pradesh, India. And today we are going to talk about mostly talked about topic in a different way, in a different phenomenon. In last 2 years, most of the people have heard of it, have thought of it, or have practiced it, and have been facing such issues and problems in their day-to-day life. That is the body ergonomics and postures. And that is because of the lifestyle, sedentary lifestyle, and mostly in last few months or years, it was due to the COVID-19 and work from home philosophies and practiced by various organizations. So today, Dr. Manish is going to talk about the correction in the ergonomics, postures, associated benefits, and the associated benefits of the correct postures and practicing. Before that, I would like to ask about his career. I would like to ask about his life, how is he doing practice in Indore, and I would like him to ask him to brief introduction of himself. Hello everyone, myself Dr. Manish Kundwani. So मैंने अपनी फिजियोथेरेपी कंप्लीट करी 2013 में फ्रॉम FGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से. तब से मैं इसी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ. स्टार्टिंग मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इंदौर के एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल से, और पिछले 5 से 6 सालों से मैं अपना जो फिजियोथेरेपी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहा हूँ इन अपोलो हॉस्पिटल इंदौर. नाउ डेज मेरा खुद का ही एक सेंटर है इंदौर में जिसका नाम मिडास फिजियो केयर के नाम से है. सो आई एम वर्किंग हियर ऑल्सो. सो जैसा कि सर ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. बेसिकली फॉर यंगस्टर्स ऑल्सो, फॉर एडल्ट एंड जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने सोचा है कि एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बनाए जिससे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बना रहे उन सभी लोगों के लिए. क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है फिजियोथेरेपी मतलब बड़े बुजुर्ग, कि जो 60-70 साल की उम्र में आ चुके हैं उनको फिजियोथेरेपी की नीड है. बेसिकली ऐसा नहीं है. ये फिजियोथेरेपी जो फील्ड है अभी इतना ग्रो कर चुका है. तो आज हम डिटेल में उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं. गुड नोट डॉक्टर मनीष. इसी के साथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने हेल्थ केयर में काफी सारे प्रोफेशंस देखे हैं जिसमें से एक फिजियोथेरेपी इज अ प्रोफेशन. तो फिजियोथेरेपिस्ट आप बनते कैसे हैं? पहले तो हम वो समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो वो बेसिक क्वालिफिकेशंस करते हैं जो भी होती हैं, जैसे MBBS है या BHMS है, BMS, जो भी बेसिक क्वालिफिकेशंस होते हैं डिफरेंट फैकल्टीज की BMS है वो करते हैं, BNYS है.
आप क्या करते हैं? आप मेरे ख्याल से बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी करते हैं? हाँ DPT करते देखिए, हैं? सबसे पहला क्या है कि वैसे फिजियोथेरेपी हर स्टेट में परसेंटेज देखा जाता है। मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ मैं एक जनरल ऑडियंस के लिए, इस पे आप एक क्लिनिकल सेटअप में, एक हॉस्पिटल में या एक क्लिनिक पे फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन का काम कर सकते हैं, है ना, राइट? यस, ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं मेडिकल साइंस में हर बार कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं, कुछ एडवांसमेंट्स होते हैं, तो आपने भी कुछ ऐसा स्पेसिफाइड स्पेशलाइजेशन किया हुआ? यस, डेफिनेटली। जैसे कि आपने बताया कि इसका जो सबसे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ओके, आफ्टर दैट ये जो फील्ड है इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। जो उसमें सबसे कॉमन जो है वो मस्कुलोस्केलेटन एंड ऑर्थोपेडिक्स एक ब्रांच है जिसमें मैंने मेरा मास्टर्स कर रखा है। और जैसे कि दूसरी भी ब्रांचेस हैं इसमें, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी, गायनिक फिजियोथेरेपी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोथेरेपी। तो अभी जो फिजियोथेरेपी है इसकी ब्रांचेस भी बहुत ब्रॉड हो चुकी है पिछले कुछ right. सालों में। So, viewers, it's to be noted that the branch of physiotherapy has a vast expansion. It has wide specialty. As Dr. Manish is saying कि इन्होंने MPT ऑर्थोपेडिक्स में Orthopedics, किया है, और ऐसे सिमिलरली MPT ऑर्थोपेडिक्स के अलावा न्यूरोलॉजी, Pediatrics, gynecology, पीडियाट्रिक्स और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में होता है। तो ये एक ब्रॉड फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है जिसमें हमारे काफी सारे फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में काम होते हैं। तो उसके बाद आपने MPT ऑर्थोपेडिक्स किया और आपने अपनी प्रैक्टिस इंदौर में हॉस्पिटल में स्टार्ट किया और आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस भी शुरू किया। कितना एक्सपीरियंस अभी तक आपको हो गया टोटल आफ्टर ग्रेजुएशन? 2013 में सर मैंने मेरा कंप्लीट किया था मेरा एजुकेशन। तब से मुझे 8 साल हो गए हैं फिजियोथेरेपी। 8 years. 8 years, yes. Wow. So it is a good time to Yes. understand the practice and People's in particular what they want. what they want. Yes, true. All right. So that was brief introduction about him. So you are from Indore? Yeah, I'm from Indore. All right. So the physiotherapy as a specialty, as you said, it's a broad specialty. I say my view, what I've seen usually, what as you said, कि लोग ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी बूढ़ों के लिए है। और मैंने जैसे हॉस्पिटल सेटअप में मैंने देखा है काफी बार की फिजियोथेरेपी कई बार मैक्सिमम, जैसे आपने ऑर्थो में MPT किया है, एडवाइस किया जाता है पेशेंट जिनका सर्जरी हुआ है या जिनका सर्जरी होने वाला है या हो चुका है। और फिजियोथेरेपी का जो मैं हिंदी मैंने एक डिक्शनरी में निकाला था, हाँ, तो उसका मैंने मीनिंग निकाला था, डिक्शनरी में जो देखा था वो हिंदी में था पुनर्स्थापन, किसी को पुनर्स्थापना करना, राइट? पुनर्स्थापन। तो वॉट एवर वी गोइंग टू डिस्कस इज हाउ दिस फिजियोथेरेपी इज इम्पोर्टेंट इन डे-to-day clinical practice, not only for the post-operative care patients, because I have seen many of the post-operative care patients require a physiotherapy. But what is your purview? Which are the areas which you have been practicing as a physiotherapist? And there are so many people in India or in local area that जो सोचते हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मैं फिजियोथेरेपी नहीं करूँगा, मेरा सर्जरी हो गया मैं फिजियोथेरेपी नहीं करूँगा, वो अवॉइड करते हैं कि यार वो तो टांगे हिला देंगे या ऐसा कर देंगे, अरे उसका वीडियो बना लो हम खुद ही घर पे कर लेंगे, राइट? ऐसे भी काफी लोग होते हैं। एक ये चीज है मेरी थिंकिंग आपको बताऊँ जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा। दूसरा ये होता है कि लोग सोचते हैं यार अब तो हो गया, अब 2 दिन 3 दिन फिजियोथेरेपी करके होता रहेगा। तो एक आप ये बताइए कि फिजियोथेरेपी का कितना क्रूशियल रोल है कि पोस्ट ऑप केयर में अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो कैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और कितना उसका इम्पोर्टेंस है? देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था कि फिजियोथेरेपी की नीड किसको अवेलेबल होना चाहिए। पहले के टाइम पे लोगों को ऐसा लगता था कि फिजियोथेरेपिस्ट इम्पोर्टेंट है सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि अपन क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो इन सब टीम्स के साथ अब एक इंडिविजुअलाइज फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो लोगों के मन में ये था कि फिजियोथेरेपिस्ट मतलब कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को फिजियोथेरेपी की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। बट नाउ डेज फिजियोथेरेपी जो फील्ड है, जैसे कि मैंने बताया कि जो अलग अलग सिनेरियो में वर्क कर रही है, सो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम लोग सालों से देखते हुए आ रहे हैं, एज अ मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट में बात करना चाहूंगा कि सबसे मेन प्रॉब्लम पेशेंट्स की होती है पेन, दर्द। पेन मैनेजमेंट के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए सर, अगर नेचुरली देखा जाए ना तो पेन अच्छा है। हाँ, इसका रीजन ये है कि भगवान ने आपकी बॉडी ऐसी बनाई है, अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा है,
बट अगर कहीं ना कहीं पेन है तो आपको ईश्वर भी ये बताना चाह रहा है कि यार कहीं ना कहीं आपकी Technical बॉडी में कुछ गड़बड़ problem. है, तो तुम अभी से उसके ऊपर पॉइंट आउट करने की कोशिश करो। बट बेसिकली लोग होता क्या है कि इसमें करते क्या है, सबसे पहले अपनी मर्जी से मेडिकल में Medical. पेन किलर्स पेन किलर्स खाते हैं, तो व्हाट पेन किलर्स डू, इट ओनली आपकी जो प्रॉब्लम Suppress. दबा देती Suppress. है। आपकी जो तकलीफ है, आपका जो सिम्टम है, उसको वो पेन किलर दबा देगी। बट बेसिकली पेन आपको आपकी कुछ डिफॉर्मिटी या डिसेबिलिटी ना हो, उसका एक प्रायोरिटी एक सिम्टम है Symptom. जो कि आपको बताता है कि आपको आपकी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। Right. पर हम लोग देते नहीं है। तो जो सबसे पहले पॉइंट है, फिजियोथेरेपी के पास आपको जाने की जरूरत है, आपको किसी भी एरिया में पेन हो। Back pain is very common these days, especially in youngsters working from home, desk working कर रहे हैं, बैक पेन कॉमन है, शोल्डर पेन कॉमन है। तो ये चीजें जो देर आर यंगस्टर्स हैव सीन टेकिंग कंसिस्टेंट मेडिकेशंस की आराजिक पैरासिटामोल डाली और चल रहे हैं, वो काम इजी कर हो रहे हैं। जाता है वो लोगों easy के हो लिए, जाता है। क्योंकि सर आजकल लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग हो गई है लोगों के लिए। अगर सर एज अ मैं लोकेश, you can call me लोकेश। हाँ लोकेश। सो लोकेश, आप देखोगे कि लाइफ अभी इतनी स्ट्रगलिंग हो चुकी है कि लोगों के पास टाइम नहीं खुद के लिए। स्पेशली Yeah. क्या है कि 10-10, 12-12, 15-15 घंटे तक संलग्न रह के काम करना, मोनोटोनस एक्टिविटी, Yeah. कभी लंबी सिटिंग वर्क्स, तो क्या होता है ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली बीमारी नहीं बनती है सर। सबसे पहले अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, आपने जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का एक एग्जाम्पल है, अगर अपन उसकी बात करें तो आपने देखा होगा कि हम लोगों का जो ऑफिस वर्क रहता है 12 से 13 घंटे का रहता है। होता क्या है उसमें, हम लोग आप कैमरा के तरफ एक जैसे ही हम लोग सिटिंग करके बैठते हैं, जिसमें होता ये है कि कभी कभी हमारी नेक की पोजीशन ऐसी रहती है कि हम एक जैसे बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले नेक में स्ट्रेन होता है। 3-4 घंटे काम करते तो तनाव महसूस होता है, हाँ। कभी बैक के ऊपर तनाव महसूस होता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पैर में झुंझुनी, सुनपन, लंबे समय तक Restless leg restless syndrome। लगता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि अपनी आंखें भी थक जाती है, Sure। गर्दन दुखती है, फिर कितनी बार सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स बोलते हैं, सर दर्द भी होने लगता है। तो बेसिकली लंबे समय तक काम करने की वजह से होता क्या है, सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम्स है स्टार्ट होती है थकान से, Exhaustion। एक्सर्शन, पेन एंड एक्सॉशन। पेन एंड एक्सर्शन। Okay। अगर अपन स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर उन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे देते हैं विद फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर्स, तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो आगे जाके बढ़ती नहीं। बट क्या होता है, बेसिकली हम अपनी मर्जी से, मार्केट में आजकल सर आपको पता होगा कि स्टेरॉइड्स वो भी बहुत इजीली मिल जाते हैं। उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हमारा शो बंद हो जाएगा। नहीं सर, ये क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या है लोगों की है, जो कि मेडिकल I में understand, I जाके understand। खुद से मेडिसिन खरीद लेते हैं कि बस दर्द जैसे जैसे गायब हो जाए, Yeah। उसकी बीमारी गायब नहीं होती। So what Dr. Manish is emphasizing, to summarize in a minute, is if any one of us, especially youngsters which we have seen now, having back pain or any kind of musculoskeletal pain which is chronic, which is consistently happening with them, they should consult their family members for a long time during last 2 years, and substantially most importantly they were safe. Then people were following the lockdown measures, and it has taught us that business can happen work from home. So there are various advantages of work from home, but there are also some physiological disadvantages of work from home. So would you like to highlight any kind of physiological disadvantage from clinical perspective, डेफिनेटली from the experience of the patients? मैं पिछले कुछ मतलब 2 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है कोविड-19 के बाद, काफी सारी कंपनीज, जैसे आपने बताया कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस जाना ये सब कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है ना सर, अपना जो ऑफिस जब बना रहता है ना कहीं उसका एक डिजाइन रहता है आपके काम को लेकर, जिससे आप कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके एक एनवायरमेंट को। बट व्हाट हैपेंस इन होम ना, हो क्या रहा है, कितनी बार हम लोग टेबल चेयर पे काम करते हैं, तो घर है तो कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, पलंग पे बैठ के काम करने लग जाते हैं, कभी सोफे पे टेढ़े होकर बैठ के काम करने लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि आपके बॉडी का पोस्चर पूरा बिगड़ जाता है। जो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बॉडी की, दैट इज स्पाइन। तो स्पाइन जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जहां सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, लोअर बैक प्रॉब्लम्स, सियाटिका, इवन इतनी सारी प्रॉब्लम्स है मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड, जो वर्क फ्रॉम होने की वजह से आजकल, पहले के टाइम पे जब हम फिजियोथेरेपी पेशेंट ही करते थे तो उसमें ओनली 20% हम लोग पेशेंट देखते थे, दे आर यंगस्टर्स। 80% पेशेंट हैविंग एज मोर देन 40, 50, 60। बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम हो क्या रहा है कि उनका बॉडी पोस्चर इतना बिगड़ चुका है,
और उनकी सिटिंग पोस्चर की वजह से उनकी मल्टीपल ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। लाइक जैसे मैंने बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आप थोड़ा हिंदी में बताएं। हाँ देखिए, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स काफी सारे लोगों ने कॉमन बना। आजकल तो पेशेंट हम लोग के पास प्रॉब्लम का नाम लेके आए गूगल डॉक्टर। गूगल डॉक्टर्स कि डॉक्टर साहब हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर हमको सियाटिका है, साइटिका है, डॉक्टर्स हमको पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। आजकल गूगल डॉक्टर सब कुछ हो गया है। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, जिनमें गर्दन में अकड़न आ जाना, क्योंकि हम लोग को लैपटॉप के सामने बैठ के लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो क्या होता है, जब 8, 10, 12 घंटे जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का पोस्चर ऐसा बना है कि आपकी बॉडी को भी कुछ समय के लिए बीच में रेस्ट चाहिए या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं कि आवर बॉडी हैज एन एक्टिविटी लॉग, लाइक देयर इज अ लॉग, देयर आर सम टाइम्स इन योर डे वेयर योर एनर्जी इज वेरी हाई and there are some times in your day your energy is very low. So our body has its own mechanism of maintaining and balancing. It is the beautiful creature human body in the world. So आपका कहने का मतलब यही कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स आए हैं, अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम नॉर्मलाइज हो रहा है, कुछ कॉर्पोरेट्स खुल रहे हैं, लेकिन जो 2 साल में जो चीजें बिगड़ गई, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अभी आपको कंसिस्टेंट बैक पेन का प्रॉब्लम है, आप दवाइयां खा के आराम से कर रहे हैं या आप कुछ वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप कुछ और सेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिलता, राइट? तो मेरा कहने का मतलब अगर आप हमें सिर्फ 1 by 1 बताएं टॉप 5 प्रॉब्लम्स, फिजियोलॉजिकल इश्यूज, और उसके कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशंस अगर आप बता पाए ऑडियंस को, जिसके लिए हमने आज ये शो रखा है। हालांकि ऑडियंस ने तो बहुत गूगल भी किया होगा, काफी उन्होंने यूट्यूब वीडियोज भी देखे होंगे, पर मैं ये कोशिश करूंगा कि आप थोड़ा क्लियरली उनको एक्सप्लेन करके बताएं। देखिए, अगर मैं ऊपर से ही बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपने नेक से स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे जो मैंने आपको कॉमन प्रॉब्लम बताई जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं या ट्रेपेजाइटिस भी बोलते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है आपकी जो मेरा एक ही रिक्वेस्ट जनता के लिए थोड़ी इजी लैंग्वेज, हालांकि हाँ जैसे मैंने बताया इसमें सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, जैसे आपका जो गर्दन से रिलेटेड आपकी गर्दन जो है वो जाम हो गई है ना, क्या है आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं सलन बहुत देर तक, तो आपकी गर्दन जाम हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी गर्दन से बहुत सारी नसें पास होती है जिनको नर्व्स बोलते हैं, जो आपके हाथ को सप्लाई करती है। बट क्या होता है यहाँ पे जकड़न की वजह से, गर्दन की जकड़न की वजह से कितनी बार होता है कि आपकी जो यहाँ पे नसें हैं वो जाम हो जाती है, जिसको हम लोग नर्व कंप्रेशन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जिसकी वजह से क्या होता है, आप में से काफी सारे लोगों ने महसूस किया होगा जब आप लैपटॉप में काम करते हैं ना, आपकी उंगलियां सुन्न हो जाती है, एकदम टिंगलिंग, बर्निंग, नमनेस। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी गर्दन एक जैसे एक पोजीशन पे रखी हुई है और यहाँ की नसें जकड़ती जा रही है, और जो नसें हाथ को सप्लाई करना है वो हो जाती है टाइट, जिसकी वजह से हाथ में सुनपन और थकान महसूस होती है। तो पहली प्रॉब्लम तो मैंने सबसे पहले आपको बताई, ये सर्वाइकल। जो सेकंड जो प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम से, क्या होता है जब हम लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं, हमारा हाथ जो है सलन काम करता है बैठ के, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी रिस्ट में से नसें पास होती है जो कि आपकी उंगली तक को पूरा सप्लाई करती है। बट कितनी बार क्या होता है कि लंबे समय तक इस पोजीशन में बैठ के लैपटॉप पे काम करना, कीबोर्ड पे काम करना, तो इस पोजीशन पे भी आपकी नसें दब जाती है, जिसकी वजह से आपकी उंगलियों में जलन, बर्निंग और सुनपन होता है, जिसको हम लोग कार्पल टनल। अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं कमर दर्द, लो बैक पेन। आप में से काफी सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि पैरों में भी सुनपन होने लगता है। कितनी बार क्या होता है, लोअर आपकी पोस्चर सही होने की वजह नहीं होने की वजह से आपकी पीछे की मांसपेशियां भी कड़क हो जाती है, स्पाज्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम सूजन बोलते हैं, सूजन में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जैसा कि हाथ में हमने बात करी, वैसे ही नसें अपनी पैरों को भी सप्लाई करती है, जिनको सियाटिक नर्व बोलते हैं। आपने काफी कॉमन वर्ड सुना होगा, साइटिका हो गया, साइटिका आजकल बहुत सुना। तो व्हाट हैपेंस कि जो आपकी सियाटिक नर्व है, जो लोअर बैक से निकल के आपके पैरों को सप्लाई करती है, अगर वो कहीं भी दब जाए, आपकी लंबी सिटिंग की वजह से, आपके बैड पोस्चर की वजह से, तो जहां भी दब जाए तो पैरों में झुंझुनी, सुनपन होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हम लोग कॉमनली देखने को मिल रही है लोगों पेशेंट्स में। तो इस तरीके के सिम्टम्स में आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए एडवाइस करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर प्रॉब्लम स्टार्टिंग पोजीशन में है तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि अगर आप ऑफिस में मोनोटोनस एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हर 1 घंटे में सिंपल से कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि अपने हाथ को अपन ने स्ट्रेच कर लिया, बैठे बैठे अपन ने कुछ मूवमेंट्स कर लिए, शोल्डर रोटेशन कर लिया। बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं ना। देखिए अगर मैं अपर बॉडी की बात करूँ तो अगर आपको मैंने बताया हाथ में अगर सुनपन होता है, आप कीबोर्ड पे लंबा समय काम करते हैं, तो आप सिंपली बैठ के
अपने दूसरे हाथ के सपोर्ट से आप इसे स्ट्रेच करके लीजिए। Okay. आप जब करेंगे तब आप एक बार पैर हाथ स्ट्रेट रखिएगा। जब आप अपने पंजे को आपकी तरफ खींचेंगे Okay. तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पूरे आर्म में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। तो जो आपका वर्किंग हैंड रहता है, अब उसको अगर बीच में अगर स्ट्रेचिंग मिल जाए नॉर्मली, तो वापस से वो एनर्जेटिक हो जाती है काम के लिए। Okay. अगर हम नेक की बात करें, शोल्डर की बात करें, तो सिंपली आप 1-2 घंटे में आपने 30 सेकंड्स के लिए जस्ट टू रोटेशन मूवमेंट। आप ऐसा मत सोचिए मेरे टेबल के पास वाला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर 1 to 2 मिनट्स। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके ये जो प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं बीमारी में कन्वर्ट होने लगी। तो सिंपली हमने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर लिए। देन फॉर अगर हम नेक की बात करें तो सिंपल स्ट्रेचिंग्स हैं। सिंपली बैठ गए, अपने हाथ रखा, अपना गर्दन को इस तरफ खींचा, तब आप यहाँ पे महसूस करेंगे आपकी मसल्स की हल्की फुल्की आपको खिंचाव और स्ट्रेचिंग महसूस होगी। सेम टू सेम आप इस तरफ करें, आपको महसूस होगा आपकी इस तरफ की मसल्स स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये जो सिंपल एक्सरसाइजेस है, आप अपनी गर्दन को ये कितने पीरियड्स में करनी चाहिए? देखिए सर, अगर आप दिन में 1 से 2 बार भी इस चीज के लिए टाइम निकालते हैं, जस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स ऑफ टाइम, Okay. तो आप जब करेंगे ना सर, उसी के बाद आप एकदम नॉर्मल फील करेंगे। स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है सर, जैसे मैंने आपको बताया सर्वाइकल की वजह से कितनी बार होता है कि आपकी आंखें भी थक जाती है और आपको हेडेक भी होने लगता है। I think this seems to be a major part of your body where you are communicating with your brain. यही से your नर्व्स आपको ब्रेन brain supply रहे हैं, supplies आ रहे हैं, इससे हो रहा है। हाँ। And your eyes are here. क्योंकि आप देखो, आप जब लैपटॉप को सलन देख रहे हैं, लाइट्स आ रही है, तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक काम करने के बाद आपकी आंखें भी थक जाएंगी। True. And nowadays, so 90% of the people have same problems. तो वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज वी हैविंग, जो हम लोग बहुत सिंपल कर सकते हैं। ऐसे आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे बैठे आपने पैर को अपना सिंपली स्ट्रेट कर लिया, 5 to 10 सेकंड होल्ड किया, उससे आपकी धीरे धीरे स्टैटिक नर्व भी स्ट्रेच। So you mean to say for cervical pains and stretching, these are the treatments to be done. Two What else? treatments. What else? और भी कर सकते हैं सर, बहुत सारी। वैसे देखिए सर, क्या होता है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ऑफिस की, तो ऑफिस में हम बैठे बैठे सिंपल 2-3 एक्सरसाइज भी करेंगे ना, तो इट वुड बी बेनिफिशियल। बट अगर आप घर पे हैं तो घर के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, सर्वाइकल को लेकर, लंबर को लेकर। धीरे धीरे इवन आप थोड़ा सा खड़े हो गए, खड़े होकर आपने बैक को हल्का सा स्ट्रेच कर लिया, धीरे धीरे आप हल्का सा रोटेशन कर लें, आपको बैठे बैठे थोड़ा सा साइड फ्लेक्शन कर लें, जिससे आपकी जो लोअर बैक है वो भी एकदम से रिलीज हो जाए। So this is about the work from home basic stretch which you are talking about. Anything else you would like to add into it? हाँ सर, देखिए, अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको पोस्चर बताया, इसमें आप अपनी सिटिंग पोजीशन को प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश करें। सो अगर आप चाहें तो हम लोग इसमें एर्गोनॉमिक को भी एड ऑन कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऊपर डालने की कोशिश करें, जिसको हम लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। बेसिकली एर्गोनॉमिक मतलब होता क्या है? एर्गो मीन्स होता है वर्क, और एर्गोनॉमिक्स मीन्स होता है वर्क प्लेस। तो आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, तो एर्गोनॉमिक्स मीन्स उसकी स्टडी, कि आप वर्क प्लेस पे कैसे काम कर रहे हैं, उसकी स्टडी के ऊपर हम लोग एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम ऑफिस की बात करें, तो अगर एर्गोनॉमिक्स में ये देखा ये गया है कि उसमें हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं बताना चाहूंगा कि उसमें आपकी सिटिंग पोस्चर को बताया जाता है। देखिए क्या होता है, कितनी बार आप लैपटॉप पे काम करते हैं सर, कितनी बार आपके लैपटॉप और आपके बीच की जो लेंथ होती है, जो स्पेस होता है, वो बहुत दूर होता है। और कितनी बार क्या होता है, आपका लैपटॉप बहुत नीचे है, आप यूं बैठ के काम करते हैं, तो भी आपकी गर्दन पे काम प्रेशर होता है। तो आप कोशिश करें, जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ट्राई कि जो आपका बैक जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। मैं साइड में एक बार करके दिखाता हूँ आपको। जब भी आप ऑफिस में बैठे, ट्राई टू सिट स्ट्रेट। कितनी बार होता है हम लोग ऐसे बैठ के काम करते हैं, उसके वजह से हमारी बैक के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता कंधे है। झुक जाते हैं, मैंने लोगों कितनी को बार सुना आप कि कंधे झुक ऐसे जाते हैं। ऐसे बैठ के काम करते हैं, उसके वजह से भी आपके बैक के ऊपर प्रेशर आता है। तो ट्राई टू सिट स्ट्रेट। आप कोशिश करें बैक को एकदम स्ट्रेट रखें, और आपकी जो ऑफिस की चेयर हो उसमें देखिए कि आप प्रॉपर आपको बैक सपोर्ट है कि नहीं। Okay. कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी ऑफिस की चेयर्स प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपकी चेयर है उसका आर्म रेस्ट और जैसे ऐसा होना चाहिए कि आप आराम से हाथ रख के आप कीबोर्ड के ऊपर काम कर सकें, क्योंकि अगर कीबोर्ड अगर नीचे होगा तो आपको बहुत ज्यादा नीचे देख के काम करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आपकी आर्म रेस्ट जो होती है चेयर की, उसके लेंथ में ही आप अपने कीबोर्ड पर रखें और काम करें। और जो आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का जो पोजीशन है, कितने लोग ऐसे होकर भी काम करते हैं सर, आपने देखा होगा, यूं करें लैपटॉप लेके,
कितने लोग ऐसे आगे झुक के काम करते हैं। तो ये सब जो पॉस्चरल एरर्स उसको धीरे धीरे अपने को रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए जो डॉक्टर मनीष बता रहे हैं, मैं समझता हूँ ये सब जानते हैं, ये गूगल में सब पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन करना उतना इम्पोर्टेंट। देखिए क्या होता है ना सर, जो सिंपल चीजें होती है ना उसको सिंपली करना बहुत मुश्किल होता है। वी ऑल नो Yeah. हाउ टू वर्क, How to. बट सर ये छोटी छोटी सी चीजें अपनी लाइफ के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पोस्चर, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं रेगुलर ट्रीटमेंट लगाने फिजियोथेरेपी के। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देता ही नहीं, मैं सिर्फ देखता हूँ कि उसका पोस्चर सही है। मैं देख लेता हूँ उसका पोस्चर कैसा है, मैं प्रॉपर उसको 5 मिनट में उसका पोस्चर करेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सिंपल उसको 5 एक्सरसाइज बताता हूँ दैट यू हैव टू डू एट योर होम। 90% जो लोग कर लेते हैं सर 10 दिन के बाद बोलते हैं कि यार मुझे बहुत कंफर्टेबल फील Yeah, posture correction is again a big thing in a talks nowadays because now last 2-3 years there has been a paradigm shift in the fitness. People were more talking about muscles previously, still they are talking, but there is always nowadays talks about a proper postural body physique which is lean and which is I'll say with the proper looks just rather than having muscles. So that also your what are you saying plays a vital role we have seen in यस डेफिनेटली सर। देखिए बेसिकली होता क्या है सर, जैसे हम जब लंबे समय तक बैठ के जब काम करते हैं व्हाट हैपेंस ना सर, आपकी कितनी बार स्पाइन भी लॉक हो जाती है सर, है ना। आपने देखा होगा एकदम से स्टिफनेस महसूस होती है आपको। कितनी बार अपनी बॉडी ओबीज नहीं भी है, अगर आपका लीन पॉस्चर भी है तो उसमें भी क्या होता है ना कि अगर आपका पॉस्चर करेक्ट नहीं है तो कितनी बार आपकी स्पाइन इतनी कड़क हो जाती है कि आपको खुद को आगे झुकना, आपके पैर को छूना उसी पे आने वाला था कि काफी लोग ऐसे हैं जो नीचे पूरा झुक भी नहीं पाते। नहीं पाते। क्या उसका रीजन है? कहीं ना कहीं आपकी जॉइंट्स बहुत स्टिफ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफ। क्या होता है सर, मैंने बताया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर्स आजकल हम लोग खुद को 15 मिनट भी नहीं दे पा रहे। जस्ट 15 मिनट्स ऑफ योर रेगुलर एक्सरसाइजेस जो है आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है सर। 15 मिनट्स ऑफ रेगुलर स्ट्रेचिंग, रेगुलर मोबिलाइजेशन दैट आर वेरी इजी, जो कि हम लोग खुद भी हमारे चैनल्स के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि आपको वो कैसे करना है। इवन गूगल्स पे बहुत इजीली अवेलेबल है, हाउ टू डू स्ट्रेच, how to do mobilization, how to correct your posture. These are very simple things, but very effective. But my whole request is we all know the knowledge is available on the Google. We all know the knowledge is available on various social media platforms. But you are always advised to see a qualified doctor. Yeah, definitely. Which is going to inspect you, which is going to assess your body. Maybe a physiotherapist or an orthopedician or some other good physician in general who will assess what is your problem. Because your problem cannot be somebody else's problem. Yeah, definitely. Right. First we have to assess the problem. Yeah, First we have to assessment, diagnose. patient assessment is very important. हाँ, फर्स्ट मैंने आपको बताया ना सर, बहुत सारे लोगों का सिर्फ मेरा जब मैं डायग्नोस करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि उनका अलाइनमेंट, उनका पॉस्चर गड़बड़ है। उस पॉस्चर को ठीक करने से उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। हाँ, और मुझे एक चीज और मैंने आपको इसमें ऐड करूंगा, मैंने देखा कि काफी लोग ऐसे जिनकी कमर मुड़ी हुई होती है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्पाइन है ऐसा स्ट्रेट होता है तो आप भी रात को मोबाइल यूज करते होंगे, कैसे यूज करते हो आप सोचिए। कितनी बार होता होगा रात को लेटे लेटे सोफा जो तकिए वगैरह, 2 तकिए लगा लिए, 3 तकिए लगे, वो बिना तकिए लगाए मोबाइल देखने लगे, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेन में जाता ही है। ऐसा तो इस उसी से स्पाइन पे ये जो टेढ़ापन आता है जो लोगों को कितना प्रॉब्लम डेफिनेटली। देखिए मैंने आपको बताया ना, ये स्टार्ट होगा थकान से, थकान कन्वर्ट होगी पेन में, अगर पेन तक भी ध्यान नहीं दिया तो फिर कन्वर्ट हो जाएगी बीमारी में। तो किस तरीके की बीमारी में कन्वर्ट होगी, लाइक व्हाट इज द जैसे प्रोग्नोसिस ऑफ दिस? देखो सर, आपने अभी सुना होगा स्लिप डिस्क इज अ वेरी कॉमन Slip वर्ड, disc, है ना। तो ये स्टार्ट होता है लो बैक पेन से स्टार्ट होगा, कंप्रेशंस। उसमें होता क्या है कि आपकी जो स्पाइन होती है ना, ईश्वर ने हमारा जो बॉडी है ना बहुत खूबसूरती से बनाया है सर, बहुत ही खूबसूरती से। जो हमारा स्पाइन होता है ना सर, हर स्पाइन की बोन के बीच में ना उन्होंने कुशन रखे हैं, है ना। तो वो कुशन क्या करते हैं ना, आपकी शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप वॉक करते हैं, जब आप जंपिंग करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें झटके आते हैं, तो कुशन क्या करता है ना, वो आपके स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है। बट होता क्या है, हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो आपकी जो पीछे की बैक की मसल्स हैं वो बहुत कमजोर हो जाती है। क्या होता है, उन बैक की मसल्स कमजोर होने की वजह से क्या होता है, जो आपके कुशंस है वो कुशंस बाहर निकल जाते हैं और पीछे से पास होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और वो कुशन बाहर निकल के आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन करती है। उसी को हम लोग डिस्क प्रोलैप्स भी बोलते हैं, स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। तो ये कभी भी पहले दिन में स्लिप डिस्क नहीं होगा सर। मैंने आपको बताया ना, प्रोग्रेसिव। हाँ प्रोग्रेसिव है। आपका पॉस्चर गड़बड़ है, आपको पेन हुआ, आपने पेन किलर खा लिया, आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं दिया, पॉस्चर इंप्रूव नहीं किया और आप अपनी गलतियों को कंप्लीटली रिपीटेट करते जा रहे हैं।
मोनोटोनस एक्टिविटी करते जा रहे हैं, व्हाट हैपेंस, तो कहीं ना कहीं वो डिस्क बाहर निकलेगी और धीरे धीरे वो पोस्चर इंप्रूव नहीं किया तो उसको पीछे जाके वो स्पाइन को भी कंप्रेस करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई 25-6 ईयर्स का यंगस्टर है जो किसी कंपनी में काम करता है, वर्क फ्रॉम होम 2 साल से कर रहा है, उसको लो बैक पेन है कंसिस्टेंटली, उसको लगातार बैक पेन है, वो मेडिसिन खा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जस्ट इमेजिनेटिव सिनेरियो। तो अगर वो 25-26 साल का है अभी और उसको ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम कितने टाइम में डेवलप हो जाए? अभी देखिए Analogy के तौर पे अगर मैं पुरानी बातें करूँ ना, तो मैंने आपको बताया ना, पहले के टाइम पे लोग पेन लेके आते थे 50 साल के बाद के लोग, बट नाउ डेज एज इज नॉट अ फैक्टर। आपका जो सेडेंटरी लाइफ है ना, पहले सर आपको याद होगा जब हमारे बचपन के खेल इतने ज्यादा स्ट्रीनस गेम्स हुआ करते थे, आजकल तो हम इंडोर गेम्स हो गए, तो क्या हो रहा है ना, बचपन से ही ना बच्चों की जो बॉडी ना वैसे डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत कम स्कूल्स रहते हैं जहाँ पे अभी स्पोर्ट्स भी कुछ इन्वॉल्व करते हैं। तो इन सब चीजों के लैकिंग की वजह से क्या हो रहा है ना, बाय बर्थ ही ना बच्चों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो बहुत लो एज में भी, इवन 23-24 की एज में भी हम लोग स्लिप डिस्क देख रहे हैं। तो मेरा एज इज नॉट अ फैक्टर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर सपोज मैं एक कोई व्यक्ति है जो 25-26 साल का है और वो वर्किंग है, मैं प्रोफेशनल की बात करता हूँ, अगर जो काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, बिजनेस सेटअप पे कहीं बैठा रेगुलर घंटे का काम है उसका, और वो बैक पेन से सफर कर रहा है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 महीने 2 साल हो गया, तो कितने टाइम में इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि उसको आप इंटरवेंशनल की जरूरत पड़ेगी? देखिए सर, साइंस भी कहीं सारी जगह पे ऐसे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं करता, बट हाँ अगर अपनी प्रॉब्लम स्टार्टिंग, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्टेज में है और आप उसको स्टार्टिंग वे में ही अगर आप उसको ट्रीट कर लें ऑर्थोपेडिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके, तो मे बी पॉसिबल वो स्लिप डिस्क तक जाएंगे। पर कितने टाइम में जाएगा वी कांट से दैट। किसी को 6 महीने में हो जाती है प्रॉब्लम, किसी को 2-2, 3-3 साल के बाद होती है। यस प्रॉब्लम होती है। देखिए अगर आप अपने अलाइनमेंट पॉस्चर को अगर नहीं करें तो होगी बिल्कुल 100%। अगर वो लाइफस्टाइल आप सोचिए आपका स्पाइन भगवान ने ऐसा बनाया है, आप स्पाइन को ऐसी पोजीशन में हमेशा बनाए रखें, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो पीछे की डिस्क है वो बाहर की तरफ निकलेगी ही ना। अगर आप झुक के ही काम कर रहे हो, आप अपने मसल्स को पावरफुल स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो स्पाइन बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसके डिसएडवांटेजेस ओनली फिजियोलॉजिकल होते हैं कि कुछ और भी होते हैं? जैसे लोअर पेन तो होता ही है लोगों को, मल्टीपल चीजें हैं सर। देखिए मैं अगर मस्कुलर स्केलेटल अगर मैं बात करने लगूं प्रॉब्लम्स की ना, तो हमें पूरी रात कम पड़ जाएगी सर बात करने की। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, जो बट सबसे कॉमन है मैंने आपको बताया, लो बैक पेन इज सबसे कॉमन, सियाटिका इज वेरी कॉमन, सर्वाइकल प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन, इवन फ्रोजन शोल्डर्स आर आल्सो कॉमन। क्या होता है कि हम शोल्डर्स के मूवमेंट नहीं करते हैं, कितनी बार ये शोल्डर्स भी जाम हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सर मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। लाइक का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है, उसको अगर कोई स्लिप डिस्क है या फ्रोजन शोल्डर मीन्स अ पेशेंट इज नॉट एबल टू रेज हिज हैंड। दिस इज सीन कॉमनली इन डायबिटिक पीपल्स। डायबिटिक लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है विदाउट एनी रीजन। तो दे आर नॉट एबल टू टेक देयर हैंड्स बैक साइड, वो अपने कपड़े वगैरह भी नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो आप हैव टू वर्क आउट, you have to do exercises, you have to meet a physiotherapist. So point to be noted that there are some solutions which are not in medicine but which are identical. Yes. Okay. And just coming to end of our program, you today nowadays, and which are few of them or all of them which you are practicing or you encourage other people to understand? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी फिजियोथेरेपी, मतलब ये कितने लोग तो मैं बताना चाहूंगा, जो मेट्रोज की बात नहीं करूंगा, छोटे शहरों की बात करूंगा, लोगों को फिजियोथेरेपी मतलब मसाज लगता है मालिश वाले ये भी एक बहुत गलत धारणा है जो छोटे छोटे शहरों में देखने को मिलता है। बट जो ये फिजियोथेरेपी फील्ड है बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं खुद ही देख रहा हूँ पिछले कुछ समय में, मैं कुछ 2-3 मोडालिटीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो मैं कॉमनली मैं भी यूज कर रहा हूँ। मैं सबसे पहली बात करूंगा शॉक वेव थेरेपी की, जो पहले कार्डियो थोरेसिक सर्जरीज में शॉक वेव टाइप की मोडालिटीज यूज होती थी, बट अभी हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड में भी बताना चाहूंगा। ये मेरे पास अभी मशीन है, दिस इज अ शॉक वेव थेरेपी। ये इसमें इसका हेड होता है और इस मशीन्स के थ्रू जो पुराने क्रोनिक पेन से, जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे जिनको शोल्डर पेन है वो सालों साल पुराना, बट किसी भी दवाई से जा नहीं रहा, हम लोग इस शॉक वेव थेरेपी के थ्रू क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर डीप शॉक और साउंड वेव्स पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है जो ट्रिगर्स बन गए हैं पेशेंट के, वो ट्रिगर्स टूटने में हमको बहुत ईजी हो जाता है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, थोड़े दिन पहले की बात है, ये जो अभी आपके IPL चल रहे हैं उसके ही RCB का एक प्लेयर
मेरे पास फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट कराने आया, उसको हील में एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गया था, और उसके ऑर्थोपेडिशियन ने उसको बोला था कि यू हैव टू टेक शॉकवेव थेरेपी फॉर दैट। यहाँ तो पहले ट्राई करना चाहिए, यहाँ तो फिर उसको सर्जरी पे जाना पड़ेगा। तो उसने इंदौर में ढूंढा कि किसके पास शॉकवेव, मेरे पास ढूंढते हुए आया। ही टेक ट्रीटमेंट विथ मी, मैंने 10 से 12 ट्रीटमेंट दिए उसको, उसकी बोन आउटग्रोथ थी, तो हमने शॉकवेव के थ्रू उस आउटग्रोथ को तोड़ा। और हाँ यस, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ही इज प्लेइंग अभी जो सेकंड चालू हुआ है वापस से, ही इज एबल टू प्ले। और नेक्स्ट मैं मशीन की बात करना चाहूंगा, तो ये पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है सर, इट इज ऑल्सो वेरी एडवांस ट्रीटमेंट। मैं बताना चाहूंगा इसके लिए थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। जो पहले अपने एस्ट्रोनॉट्स हुआ करते थे, बेसिकली वो जब स्पेस में जाया करते थे, वहां ग्रेविटी नहीं मिलती थी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से क्या होता था ना, उनकी बोन्स में बहुत पेन होता था। जब वो वहां से होकर 15 दिन में नीचे आते थे, तो ऊपर उनको बहुत पेन होता था, और जैसे ही वापस मैग्नेटिक फील्ड में आते थे वो, तो उनकी बोन्स वापस से रीजनरेट होना चालू होती थी, तो उनकी पेन्स कम हो जाते थे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स इन ऑर्थोपेडिक केसेस ऑल्सो। तो इस पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, जिन लोगों की बोन्स कमजोर हो गई है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स बोलते हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई, उसको हम लोग पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दी जाती है लगभग 15 से 20 दिन से, जिसके बाद क्या होता है, उसकी सेल्स का रीजनरेशन स्टार्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है, और जो उसकी बोन्स कमजोर हुई है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती है। अगर आप गूगल पे भी पढ़ेंगे पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो देर आर टू मच ऑफ लिटरेचर जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। So this is useful way, which all areas it is useful. जैसे कि मैंने आपको बताया सर, इवन मुझे नहीं पता, मैं ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, बट पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसा कहा जा रहा है आज की तारीख में कि इवन इट ट्रीट्स हाइपरटेंसिव पेशेंट, इट ट्रीट्स हर्निया पेशेंट, इट ट्रीट्स डायबिटिक पेशेंट। बट मैं अपने केसेस में इनको यूज कर रहा हूँ जो पुराने केसेस हैं। अभी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको बेल्स पाल्सी हुआ है, तो फेस का पैरालिसिस जिनको बोलते हैं, आई एम यूजिंग इन दैट ऑल्सो, जिसमें ये मशीन मुझे हेल्प कर रही है उसके सेल्स को रीजनरेशन करने में। और कंपैरेटिवली जो हम पुराने ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट करते थे उससे हम पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं कि हमको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। How new it is? हाँ, How new this technology is? देखिए बाहर की सिटीज में तो मेट्रोज में तो इसको काफी सालों से यूज करा जा रहा है, मेरे ख्याल से 5-6 साल तो हो चुके हैं। बट अभी इंदौर में और अपने शहर में अभी इतने सारे बहुत सारे सेंटर्स नहीं है जहाँ पे इसको यूज किया। So this is one of the advanced technologies, the shockwave therapy in physiotherapy and electromagnetic pulse waves. These are the two technologies which Dr. Manish has been using at his clinic for better treatment. ट्राइंग टू गिव बेटर ट्रीटमेंट, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को का दर्द हम जल्दी से जल्दी ले सकें और उनको नॉर्मल लाइफ दे सकें। और वो क्या रखा है साथ में? देखिए जैसे आपने देखा होगा, दिस इज अ फिजियो गन, हम इसको फिजियो गन बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो पीछे स्पाइन में मसल्स बहुत टाइट हो जाती है, तो इट वर्क्स वेरी वेल। अच्छा, मैं दिखाना चाहूंगा आपको इसके बारे में, तो हाउ इट वर्क्स। तो लेट मी स्टार्ट इट। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके बैक पे, आपके चेस्ट पे डरिए मत। तो अगर हम आपके फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए हैं, आप जिम में वर्कआउट करते हैं फॉर एग्जांपल, पर जिम में किसी गलत टेक्निक के साथ एक्सरसाइज करते करते आपको इंजरी हुई, मसल स्पाज्म, आपकी बाइसेप मसल अफेक्ट होगी। वर्क वेरी अच्छे से आप देखेंगे। इसका हेड रहता है जो वर्क करता है, जो मसल्स के अंदर एक थ्रस्ट देता है, और उस एरिया में जब थ्रस्ट जाएगी तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्पीड में बढ़ेगा, और स्पीड में बढ़ेगा तो वहां की हीलिंग फास्ट हो जाएगी। मैं देना चाहूंगा आपको, वेरी सिंपल। वाह, अगर मैं बाइसेप्स इससे मेरे बाइसेप्स बढ़ जाएंगे। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो जस्ट इन सिंपल वे, तो इससे क्या होगा, आप खुद फील करेंगे रिलैक्सेशन, हीटिंग अप एंड रिलैक्सेशन इज हैपनिंग। तो उससे क्या होगा कि आप उस एरिया को रिलैक्स करेंगे, तो जिससे ऑटोमेटिकली सर आपकी रिकवरी फास्ट होगी। So as we all know that physiotherapy is a broad area, there are good people, good specialists working in this field. There have been good treatments, people are getting proper rehabilitation and getting well. Most of the time I've seen people working in post-op rehab, but as Dr. Manish has pointed out, एक पॉइंट और मैं आप काटूंगा, सॉरी जी। नाउअडेज एक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है जो कि जिससे हम लोगों को रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए मेरे को आपको काटना पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राई निडलिंग। ड्राई निडलिंग। इसमें क्या होता है कि आपके पुराने जो ट्रिगर्स हैं, जो पुराने जैसे बैक पेन हो गया, नेक पेन, शोल्डर पेन, इसमें इसको हर जगह यूज किया जा रहा है।
जहां भी आपके पॉइंट्स में पेन होता है, ट्रिगर्स होते हैं। देखिए सर, हर बॉडी के अंदर कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रिगर्स और लेटेंट ट्रिगर्स। तो मतलब आपकी बैक को मैं प्रेशर करूंगा ना तो वहां पेन जरूर होगा, तो वहां ट्रिगर है, बट वो दबा हुआ ट्रिगर है। बट क्या होता है, जब आपने लॉन्ग ड्राइव कर ली, बहुत सारे किलोमीटर चला रही है, तो वो जो आपके लेटेंट ट्रिगर्स है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको शोल्डर पेन होने लगता है। तो व्हाट वी डू, तो वी हैविंग दिस इज अ ड्राई निडलिंग सेट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली निडल्स लेते हैं और बहुत हेयर लाइक निडल्स होती है, और उस निडल को हम आपकी प्रॉब्लम को सबसे पहले पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट करके उस एरिया में एनाटॉमिकल वे में, फिजियोलॉजिकल वे में उस निडल को इंसर्ट किया जाता है, जिससे जो आपके नॉट्स बने हैं वो एकदम से टूट जाता है। वाह, इट्स वेरी मैक्रो। यस, वेरी माइक्रो। जो हमारे पास पहले पेशेंट फिजियोथेरेपी एक एक महीने करते थे ना, अब इन सब टेक्निक्स की वजह से ना जस्ट इन 4 to 5 days पेशेंट बोलते हैं मेरी 70-80% प्रॉब्लम खत्म हो गई। पहले हमको फिजियोथेरेपी एक एक डेढ़ महीने तक खींचनी पड़ती थी, बट ये जो मैंने बताया, ड्राई निडलिंग, फिजियोगन, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, शॉक वेव, ये जो मशीन है, लॉन्ग वेव, इस टाइप की मशीन है, जिसमें हमको आजकल रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने लगे हैं। हाँ, वही है, क्योंकि हम देखते हैं काफी सारे पेशेंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी ऑप्ट नहीं करते, कई बार इवन एडवाइस किया गया हो। उसका रीजन ये और नहीं है, करते लोगों भी के हैं तो वो दिमाग discontinue में कर ये देते रहता है कि यार एक महीना खर्चा कौन जाएगा, एक महीना कौन जाएगा, खर्चा ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कौन ट्रीटमेंट। फिजियोथेरेपिस्ट को खर्चा करेगा, मतलब वो मेंटली को चेंज करने की अभी जरूरत है। फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आर गिविंग एडवाइस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो आपने कहा कि एक जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स को हम समझ सकते हैं कि उनको रिहैबिलिटेशन लगता है लंबे समय तक, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत हो जाता है। तो काफी सारे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, काफी सारे होते हैं सिंसियरली करते हैं और वो रिकवर होते हैं। तो पेशेंट्स का सर आपने स्ट्रोक की बात करी, अगर अपन 20 साल पहले अगर बात करें ना, जिन लोगों को पैरालिसिस होता था ना, मीन्स उसकी अब लाइफ एंड हो चुकी है, वो बिस्तर पे ही रहेगा। हाँ, बट नाउ डेज विद द हेल्प, देखिए मेडिसिन का पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही सही हर जगह पे, बट विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी पेशेंट्स अब ठीक होना जल्दी स्टार्ट हो। पहले के टाइम पे लोग पैरालिसिस होता था ना, मीन्स अभी बेड रिडन हो चुका है, अभी आदमी नहीं चल पाएगा कभी। नाउ डेज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, मैंने देखा पेशेंट 2 से 3 महीने में चलने फिरने लग जाते हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। सपोर्ट, यस, सपोर्ट नहीं कहूंगा सर, इट्स वेरी Very इंपॉर्टेंट। important. जो मेडिसिन जितनी इंपॉर्टेंट है, मैं फिजियोथेरेपी को भी उतना इंपॉर्टेंट बोल देना चाहूंगा। बिल्कुल, हम भी इसी बात पे सहमत है आपसे। और डॉक्टर मनीष ने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी बताई है, ये सब is to be done by physiotherapists. So viewers, please note that you have to see a qualified physiotherapist of your area to get all the proper treatments and services. Thank you, Dr. Manish. If any questions are there, please let us know. Don't have any questions because we are going to be late show now. Yeah. So thank you, Dr. Manish. It was a pleasure talking to you, and I'm sure that whatever little we had a conversation today, it was very crisp conversation regarding the body postures and techniques. If patients want to see you, if any case, if any of the patient want to see you, where they can consult you? देखिए सर, इंदौर के लोग तो मुझे डायरेक्टली मेरे सेंटर पे आके मिल सकते हैं। मिडास फिजियो केयर के नाम से हमारा इंदौर में सेंटर है। बट मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहूंगा, जो कि हम लोगों ने अपना एक चैनल बनाया है मिडास फिजियो केयर और डॉक्टर मनीष कुंदवानी के नाम से ही, कि जो लोग मुझ तक नहीं भी पहुंच सकते हैं, जैसे सर ने मेरे को 2-3 बार कोशिश करने की करी कि आप एक्सरसाइज बताओ, आप एक्सरसाइज बताओ, एक्सरसाइज बताओ, मैं बहुत ज्यादा बता नहीं पाया, जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के लिए वी नीड टू लाई डाउन, कुछ पोजीशंस हमको बैठना पड़ता, मैं नहीं बता पाया, मैं इस चीज को आई एम एक्सेप्टिंग दिस, बट फॉर दिस मैंने अपना एक छोटा सा चैनल बनाया है, जो कि एक फिजियोथेरेपी चैनल है, मिडास फिजियो केयर के नाम से ही। डॉक्टर मनीष कुंदवानी भी आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको वो चैनल जरूर मिलेगा। उसमें मैंने सभी प्रॉब्लम्स रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटे छोटे 3-4 मिनट के वीडियोस डाले हैं, लाइक शियाटिका, सर्वाइकल पेन, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे से 5-5 मिनट के वीडियोस बनाए हैं। अगर आप मुझ तक नहीं भी पहुंच सकते हैं तो आप उन वीडियोस को देखें, और उन वीडियोस को देख के मुझे 100% पता है कि आप में से 90% लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। देखिए 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तो उन केसेस में एक्सरसाइजेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कितनी बार हमको एक्सरसाइजेस रोकनी भी पड़ती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बहुत सीवियर स्टेज में है तो उस केस में अगर हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़नी ही है। ये पॉइंट है, क्योंकि आप जरूरी क्या फिजियोथेरेपी करेंगे तो वो ठीक ही होंगे। यस, जैसे आपने बताया ना, फॉर दैट यू हैव टू टेक अ असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। यस,
Diagnosis and assessment is very important. Important. For that, you have to consult with a doctor and with a physiotherapist. Ki your problem is treated by doctor by conservative way or by surgical way. So thank you so much, Dr. Manish. It was a pleasure talking to you. And viewers, so nice of you. I'm thankful to you for giving good response to all the show videos which we have done. This is our second show today. Third show today. First we covered the live Graham Curdom in Indore. Second we did a pediatric orthopedic session with Dr. Gaurav Jain on clubfoot. And third session we have done now with Dr. Manish Kundwani on the body postures and ergonomics. So all the viewers who have been watching this show, I thank you from bottom of my heart, and please take good care of yourself. And today, since it's 25th of September 2021, it's World Pharmacy Day. Again, love to all the pharmacists and people involved in pharmacy healthcare. Regards to them, thank you to them. Please take care of people. Please keep serving communities and take care of yourself. Thank you. Good night. Shubh Ratri. Namaskar. Namaskar.